Good afternoon, all of you. So those who have asked questions, I have put on Google Classroom, I have answered that. Rutuparna, have you read? Is Rutuparna there? Rutuparna is there. So did you read the answer? Yes. Got it? Do you understand? The question was very good. It depends. You can start, Naneshwari. Why this question? Some students may have weaker internet. In that case, if you start the camera, then okay. It is compulsory because हम लोग देख सकते हैं. So good, मैं भी compulsory कर लेती हूँ. सब लोग कैमरा ऑन करो. Camera on for all. So I excuse you because I believe in giving more freedom. तो ये हो सकता है कि किसी का इंटरनेट कम हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. That's it. Otherwise you can start the camera. That's good. तो कोई एकदम ये तो नहीं कर रहा है. What do you call? कहीं और ध्यान तो नहीं है. Right? So that can be seen. That's why it is always better to have a camera on unless you have some problem. Okay. So but I don't tell you generally. I believe that you speak to me, it is always preferred. I would prefer that. And you should be responsible now, right? ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप यहाँ पे इंटरनेट में कनेक्टेड हो एंड देन आपका ध्यान कहीं और हो. So that is let me tell you one more thing, okay, to Naneshwari and of course to everybody. See, ये और अगला साल ये आपका लास्ट ईयर है जब कोई आपको पढ़ाएगा. Do you why am I saying like this? You think? Why do you think I am saying like this? अरे मैं कुछ बोल रही हूँ गौरव, उस पे ध्यान तो दो. You will be intimated when the test is there. Okay? अभी क्या चल रहा है वो सुनो क्लास में. Yeah, you are grown-ups now, so you should be responsible one thing, or whatever course you take admission in. Okay, whether you take admission into MBBS, BDS, physiotherapy, engineering, या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, wherever, ऐसे कोई पूरा सिलेबस वगैरह नहीं पढ़ाया जाता कोई कॉलेज में. और मेडिकल और पैरामेडिकल ऐसे जगह क्लास भी नहीं लगता. कुछ लोग इंजीनियरिंग का क्लास लगा ही लेते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल. यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट. हाँ बोलो, टेल मी. Ma'am, Yes. am I audible? I was asking it out. Yeah, you can speak little. I can hear you. Speak little loudly. Who is this? This is Radha. Am I audible? Yeah, you are audible, but your volume is low. Bolo. Tell me, Radha. Ma'am, actually, I googled euphorbia after class was ended. So the involucre looks like flower. Inflorescence, na? Yeah. Exactly. It exactly looks like a flower. And the colors were also different. So, like, how does it happen? यूफोरबिया के बहुत ज्यादा स्पीसीज है. ओके, बहुत ज्यादा स्पीसीज है. तो आपको कौन सा स्पीसीज का मिला वो भी एक ये है. आई टेल यू हाउ इट इज. One minute. A red colored one. दैट इज ठीक है. मैं एक आपको बात बताती हूँ. सी,
इवन अ स्टेम में क्या क्या वेरिएशंस है देखिए, यूफोरबिया। ओके, फ्लावर्स में तो होंगे ही। अरे बेटा क्या कर रहे हैं? सी बेटा, मैंने पेन पैड गलत डायरेक्शन में रखा था तो इसके लिए उल्टा लिखने लगा। आई गॉट कंफ्यूज्ड। सो ये यूफोरबिया जो है ना, आई विल एक्सप्लेन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दैट। यूफोरबिया टिरुकैली करके एक रहता है, तो ऐसा सिलिंड्रिकल, ये सब फाइलोक्लेट्स है। अंडरस्टैंड? आई एम नॉट शोइंग यू द फ्लावर्स, बट इनमें वेरिएशंस देखो। ओके ऐसा है। कुछ यूफोरबिया हो रहता है वो फ्लैट थिक रहता है, कुछ यूफोरबिया एंटीकोरम करके एक है, तो इसमें देखो क्वाड्रेंगुलर स्टेम है। ओके, ये सब यूफोरबिया के अलग अलग स्पीसीज है। और भी पल्चीरेमा करके है, उसके फ्लावर्स मोस्ट प्रोबेबली यू मस्ट हैव सीन यूफोरबिया पल्चीरेमा के फ्लावर्स विच अपीयर रेड इन कलर। तो स्पीसीज के हिसाब से बहुत स्पीसीज है यूफोरबिया के। ओके, जीनस इज यूफोरबिया बट स्पीसीज अलग अलग है, तो उसके हिसाब से वो बदलेंगे। ओके, तो हमको क्या करना है अभी, अंडरस्टैंड, हम लोग को इतना सारा स्टडी नहीं उसके बारे में करना है। अंडरस्टैंड? Because we are not doing research on euphorbia. This is only one example where you are studying Cyathium type of inflorescence. उसका एक example है, right? वही तक आपको सीमित रहना है। I mean, you okay? Clear, Radha? More doubt. Yes. Ask me. What is receptacle? रिसेप्टैकल मैं अभी बोलने जा रही हूँ आपको। ओके, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज रिसेप्टैकल। काफी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं, तो इन सनफ्लावर, व्हेन आई एम डूइंग सनफ्लावर, आई टॉक अबाउट व्हाट इज रिसेप्टैकल। अब मैं लिविंग वर्ल्ड के 5 क्वेश्चंस में पहले आपको पूछूं। ओके, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू हैव यू रेड द चैप्टर। आई आस्क्ड यू टू रीड एनसीईआरटी इन द आफ्टरनून। यस। चलो पोलिंग लेते हैं, कितने लोगों ने देखने दो मुझे, ऑनेस्टली आंसर करो प्लीज। कितने लोगों ने, इफ यू रेड राइट नाउ इन द बिटवीन द 2 लेक्चर्स, इफ यू हैव रेड एनसीईआरटी लिविंग वर्ल्ड, से यस, अदरवाइज से नो। मैं लॉन्च किया मैंने पोलिंग, 1 मिनट। हाँ, से यस और नो। Let me see how many honestly answer देना है please. If you've read NCERT Living World, say yes. If you haven't read it, say no. And answer honestly. Quickly vote please. अभी भी कुछ 7-8 लोग ने वोट नहीं किया है. So if you read NCERT, say yes. If you have forgotten or by any other reason you have not done it, say no. तो कुछ 1/3 लोग हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है. ओके, आई वुड लाइक टू नो द रीजन. तो एंड पोलिंग करती हूँ मैं अभी, और रीलॉन्च कर रही हूँ पोल इसके लिए. ओके, आई एम रीलॉन्चिंग द पोल. दोज हु हैव एनसीईआरटी बुक ऑफ बायोलॉजी, आई एम आस्किंग, say yes. If you don't have, say no. If you don't have the book, say no. We have to mark yes if we have fingertips or. No. NCERT textbook means NCERT textbook. Okay, ma'am. Not fingertips. बहुत सारे लोगों के पास मुझे ये दिख रहा है कि बुक नहीं है. So those who don't have the book, Nyaneshwari, why don't you have textbook? I have told this long back. Old version यानी कितना old है मैथिली?
सी आई टेल यू, ये कहीं मिलता है क्या? देखिए अमेजोन पे अवेलेबल है क्या? देखा आपने? 2 year old इज ओके, यू नीडंट बाय। मेरा तो 3 साल पुराना है। अनलेस इट इज चेंज यू नीड नॉट बॉदर। ऑनलाइन कहीं मिलता है क्या? देखा क्या आपने? यू मस्ट हैव द एनसीईआरटी बुक। दोज हु डोंट हैव, प्लीज नोट दैट। ओके, NCERT textbooks are available on Amazon. Correct. Now one more thing, NCERT textbooks are available online also. Okay, आपको ऑनलाइन भी मिल सकता है, बट आई वुड recommend that you buy a textbook, क्योंकि आप कितना ऑनलाइन पढ़ेंगे? That is getting too much with you now. Are you getting my point? So you must have a hard copy of the book. So within a week you must, I'm going to ask next lecture again, huh? So it's compulsory to buy NCERT book of 11th standard biology and also chemistry. Don't buy physics. Is that clear? Those who don't have must buy that book. You can, meanwhile you could have read online भी NCERT के सभी books पूरे available है, बट ऑनलाइन पढ़ने में ज्यादा आंख को भी तकलीफ होगी, देन ऑल दोस प्रॉब्लम्स आर देयर। ओके, आपको पोलिंग अपने यहाँ दिखता है भूमि, तो वहां पे आपको यस या नो मार्क करना होता है। नहीं मैम वो नहीं, आपने क्यों पोलिंग मतलब लॉन्च किया वो पूछ रही थी। हाँ, you joined right now, you joined late. So I asked the 2 polling things I did. Whether you read, tell me whether you read NCERT book in the afternoon. भूमि, मैम मैं बाहर गई थी। अरे तो क्या we read the polling? मैं बाहर गई थी 9 बजे से, तो मैंने नहीं पढ़ा। that is not done, that is not done. Study comes first, okay? ओके मैम, अब घूमने मत जाओ पढ़ाई छोड़ के। कॉलेज नहीं मैम कॉलेज एडमिशन के लिए ओके ओके, कॉलेज एडमिशन था, ठीक है ठीक है। फाइन, यू आर एक्सक्यूज, बट बुक है क्या आपके पास? मैम अभी नहीं है, मैं थोड़े देर बाद घर जाऊंगी तो मिल जाएगा। Yeah, you have a week's time, but please everybody please buy that book, because you must read NCERT book. Okay, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ रही हूँ, दैट इज बेस्ड ऑन NCERT लिविंग वर्ल्ड पे। ओके, आई एम टाइपिंग द क्वेश्चन, यू कैन आंसर दैट। ये MCQ नहीं मैं पूछ रही हूँ, आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑन चैट बॉक्स ना? हाँ, चैट बॉक्स पे दे दो, बात करो। आंसर कुछ बड़ा नहीं है। ये अपने नोटबुक में लिखी है क्वेश्चन। अभी या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी क्वेश्चंस लिखने के बाद, नहीं तो अभी कॉपी कीजिए, whatever, but you must have these questions. First question is, in which organisms growth is synonymous with cell division? Give me answer. This is the first question. मैम मल्टीसेल्युलर? No, that's a wrong answer, Baba. Huh? यूनिसेल्युलर। For example, who's this? दिस इज राधा मैम। राधा, वेरी करेक्ट आंसर। और कोई आंसर नहीं दे रहा है, मुझे आंसर चाहिए सबसे। अभी तो आंसर एनीवे अनाउंस हो गया, बट व्हाई, कैन यू एक्सप्लेन राधा? व्हाई? Ma'am, because in unicellular organisms, one cell only performs all the functions. या वो रीजन नहीं है, सुनिए। अभी बैक्टीरिया या यूनिसेलुलर को भी कोई भी पैरामीशियम हो तो वो डबल हो जाते हैं, फिर डबल से 4, ऐसे नहीं हो सकता ना। सपोज यू टेक अ ट्री और ह्यूमन बीइंग, तो एकदम छोटा बच्चा बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, या ट्री कैसे बड़ा होता है, वैसे नहीं होता उनका ग्रोथ ना। तो वो एक लिमिटेड, ऑलमोस्ट
equal size छोटा सा cell, smaller size is formed and then it grows slightly, but when they multiply we call they have grown. Okay, yes Kaushik, what do you want to say? मैम इसका रीजन एक देना था कि जैसे हाँ। हम किसी ह्यूमन चाइल्ड को फेवरेबल एनवायरनमेंट दे तो वो बड़ा होगा, मतलब वो ग्रो करेगा। अगर हम किसी माइक्रो आई मीन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को फेवरेबल एनवायरनमेंट दे तो थोड़ा ग्रो करके जल्दी से डिवाइड कर जाएगा, इसलिए उसके लिए ग्रोथ जो है वो सेल डिवीजन के लिए के जैसी ही है। नहीं वो रीजन नहीं है कौशिक, सुनो अभी क्या है देखिए, सपोज यू टेक अ ह्यूमन जाइगोट, ओके, तो जाइगोट के 2 सेल्स हो जाएंगे, 4 सेल्स हो जाएंगे वगैरह वगैरह, ओके, एंड देन अल्टीमेटली इट विल ग्रो इन साइज। तो हम लोग खाली सेल डिवीजन हुआ ऐसे नहीं, हम लोग क्या कहते हैं, बाकी के एट्रीब्यूट, कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट होने चाहिए। इट इज इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन स्ट्रक्चर, तो सेल डिवीजन नहीं होगा। फिर भी हर जगह सेल डिवीजन नहीं होगा, बट फिर भी कुछ मास बढ़ेगा उनका, ओके, तो वी विल कॉल इट ग्रोथ। बट ये जो बैक्टीरिया जो है ना, तो उनमें ये एनसीईआरटी का सेंटेंस है समझो, तो उनमें क्या है, फॉर एग्जांपल बिकॉज ये यूनिसेलुलर आई एम टॉकिंग ऑफ बैक्टीरिया, सो उनमें कुछ साइज उनका ज्यादा बढ़ता ही नहीं है। तो 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए, तो हम उनको ही ग्रोथ कहते हैं। तो इन यूनिसेलुलर, आंसर इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ओके, क्योंकि उनका साइज ज्यादा बढ़ नहीं सकता। दैट इज व्हाई सेल डिवीजन ओनली वी कॉल सिनोनिमस विद ग्रोथ। मल्टीसेलुलर में क्या होता है, सेल डिवीजन इज कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ, यहाँ पे सेल डिवीजन मींस ग्रोथ। मल्टीसेलुलर में खाली सेल डिवीजन होने से नहीं होता, बाकी के फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कौशिक? यस। ओके, तो ये पूछा जाता है नीट में, ये आप लिख के रखो। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके। ये क्वेश्चन पढ़ो अभी। Why? Can I try? Pardon? Can I Yes, try? yes. Kaushik, tell me. Because there are many living organisms who do not reproduce. Okay, correct answer. और कौन बात कर रहा है? Ma'am, Rao Desai. Okay, tell me. Ma'am, some living organisms like mule and worker bees or infertile human Very beings good. Yeah, reproduce. they are sterile. Naneshwari, what do you want to say? I wanted to say the same thing, that Okay. there are many organisms which do not reproduce. Correct. And Rao? Same thing, ma'am. There are Okay, many living correct. organisms who do not So reproduce. mule and worker bees are very good examples. So they are living, but they never reproduce, correct? So that is why reproduction cannot be considered as defining property of. तो ये जो properties है ना, उनमें से कौन सा है कौन सा नहीं है, ऐसे typical question आता है। अभी मैं और एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अब मैं किसको आंसर देना है वो मैं बताऊंगी, ओके।
चलो मैं अभी नाम ले रही हूँ कोई स्टूडेंट का जिनको आंसर देना है। बाप रे, बहुत सारे मैसेजेस आए हैं जो मैंने। ओके, वेरी गुड। ये ईशा, ये आंसर गलत नहीं है। इंदिरा नहीं, आई डोंट वांट दैट आंसर। नो प्रज्ञेशा। ओके, काफी सारे पहला दूसरा आंसर काफी लोगों ने दिया है। आई विल टेक द नेम ऑफ अ स्टूडेंट नाउ। भक्ति, भक्ति, कैन यू आंसर दिस? नो इंदिरा, नो प्रज्ञेशा। हाँ हाँ हाँ, एक ने, किसी ने तो आंसर अभी मुझे दिखा, करेक्ट आंसर। एक मिनट, लेट मी सी। यस इंदिरा, दैट्स राइट। अभी आपने जो लिखा दैट्स राइट। और किसी ने लिखा है, हाँ, नो नो नो, गंधार चैत्राली, आई डोंट वांट दिस आंसर। नो, इंदिरा हैज आंसर्ड सेकंड टाइम व्हाट है। नो 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 कौशिक, नो। IVF is something in vitro fertilization. Yes अपूर्वा, परफेक्ट। भक्ति, मैंने आपसे आंसर पूछा है। दर्शना, गौरी, कुछ लोग बिल्कुल कभी मुझसे बात ही नहीं किए हैं। नो नो नो, can you answer? You can read na? Can you answer this question? No, Mrunmayee. I'll give you the answer now. I'm giving you the answer for this. Third one. Yes. They are called living reactions. NCERT. बहुत important question. नीट में आएगा। ओके, सो जैसे कि सेल में जो रिएक्शंस होते हैं, अगर हमने वो टेस्ट ट्यूब में कराए तो टेस्ट ट्यूब लिविंग हो गए क्या? टेस्ट ट्यूब नहीं लिविंग हुए, बट द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज लिविंग रिएक्शंस। ठीक है मैम? हाँ, then what about in vitro biochemical reaction? इन विट्रो का मतलब है, इन विट्रो का मतलब है आउटसाइड द बॉडी। इन वाइवो का मतलब है इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी ऑफ द, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। इन विट्रो यानी इन द टेस्ट ट्यूब या इन द लैब, मींस आउटसाइड, आउटसाइड द लिविंग बॉडी। क्लियर? तो इन विट्रो, इन वाइवो कहीं भी यूज होता है टर्म। Ma'am, so is in vitro biochemical reaction answer okay? No, it is not. आपको लिविंग रिएक्शन यही आंसर देना है। Okay, ma'am. बिकॉज स्पेसिफिकली एनसीईआरटी का ये सेंटेंस है, और ना एनसीईआरटी के सेंटेंस उठा उठा के वो क्वेश्चंस डालते हैं। बिकॉज देखिए, इन विट्रो बायोकेमिकल रिएक्शन ये गलत नहीं है, या इन विट्रो रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, ये कुछ लोगों ने आंसर दिए, वो गलत नहीं है। बट होता ये है, नीट में 4 ऑप्शंस रहते हैं। ओके, एंड यू हैव टू आंसर द गिव द मोस्ट करेक्ट आंसर, तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी एक क्वेश्चन पूछती हूँ, हाँ आपको। हम लोग सोचो, विजुअलाइज, हम लोग सब लोग क्लास में, आप लोग बैठे हो, मैं प्लेटफॉर्म पे हूँ और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ओके, सो आई पुट वन क्वेश्चन, ओके, जिसके 4 ऑप्शंस मैं दूंगी। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग ऑन डैश। ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लैकबोर्ड, वो तो गलत है, यू नो दैट। सेकंड ऑप्शन इज फर्नीचर, थर्ड ऑप्शन इज चेयर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन इज बेंचेस। तो आप बेंचेस पे बैठे हो ऐसे सोचो, बट फर्नीचर गलत हुआ क्या? इज फर्नीचर अ रॉन्ग ऑप्शन? नो, इट इज नॉट, बट यू विल नॉट गेट मार्क्स इफ यू आंसर फर्नीचर। Are you getting my point? Yes. You have to answer. So the most correct answer gets marks. So यहाँ पे the most correct answer is living reactions. ठीक है? Yes, ma'am, got it. हाँ, आपका, मैं ना आपका थिंकिंग डेवलप कर रही हूँ। ओके, उस तरह से आपको सोचना है,
अभी एक बहुत ही इजी क्वेश्चन सबको आएगा. Who proposed binomial nomenclature? Everybody knows it, I guess. Carolus Linnaeus. Yes. तो उसे कार्ल लीनियस भी कहते हैं, खाली लीनियस भी कहा जाता है. ओके, सो ही प्रपोज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये. ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. हाँ, मैं और एक क्वेश्चन मैंने बनाया है. चलो इसका मुझे आंसर दो. Chordata. Excellent. Who's this? Radha. Radha. Okay, और सभी लोगों ने दिया है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो कॉर्डेट्स हैव गॉट. आपको ये मतलब समझा? हॉलो नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं? बोलो. हॉलो नर्वस सिस्टम क्यों कहा है? आप अगर मैं नोटोकॉर्ड नहीं लिखती तो आपको समझ में आता? फिर भी शायद नहीं आता, है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो हॉलो नर्वस सिस्टम क्यों? यू नो, आई टेल यू दैट. सी, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन है ना, दिखाती हूँ एक छोटा सा सिंपल सा डायग्राम, बिकॉज ये बाद में हम लोग तो करने ही वाले हैं. तो देखो, हाँ, ऐसा है हमारा, ये हमारा ब्रेन है ऐसा. ओके, और ये, और फिर ना मैं सब पार्ट्स वगैरह बहुत डिटेल में तो जा ही नहीं सकते अभी, बहुत बड़ा सिस्टम है. और ये है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, तो इसके अंदर एक्चुअली, ये मैं अंदर का पार्ट मैंने निकाला, ऐसे सोच लो. मैं ब्रेन इसके बाहर बना रही हूँ अभी. तो ब्रेन इज लाइक दिस. ओके, एंड दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड. और ये अंदर वाला पार्ट चीज क्या है फिर? दिस इज द कैविटी इनसाइड. यहाँ पे भी एक स्पाइनल कॉर्ड के बीच में एक ऐसे पैसेज है थ्रू आउट. ओके, सो वी विल कॉल इट हॉलो. आई बात समझ में? Therefore dorsal and nervous system dorsal. आपको हॉलो का हॉलो तो पता नहीं है, but you of course must be knowing that chordata spinal cord dorsal है. करेक्ट, डॉर्सल स्पाइनल कॉर्ड है ना हमारा. एंड नॉन कॉर्डेटा में जो मैंने ये इसमें भी किया था ना, अपने फाउंडेशन के लेक्चर में, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है. याद आया? तो ये भी तो क्लू है. ऑलराइट, इट्स लाइक अ हॉलो ट्यूब. करेक्ट. हाँ, यस. Could you explain this brain cavity passage? नहीं, ये ना ब्रेन जो बड़ा ब्लू वाला सोचो ब्रेन है, लेकिन उसके अंदर ना एक कैविटी रहती है बड़ी सी. ओके, यू विल स्टडी दैट इन नर्वस सिस्टम. एंड ये स्पाइनल कॉर्ड है टेल की तरह, तो उसके थ्रू कैविटी पैसेज जैसे कंटिन्यू होती है. एंड दैट इज फिल्ड विद अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, Green one is spinal cord or the blue one is spinal cord? yes, the blue one outside is, ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये है बाहर वाला ब्रेन. कैविटी अंदर रहेगी ना. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Okay, अभी I'll show you one question that is asked in Google Classroom by Rutuparna. A very good question.
So I would like everybody to know. Otherwise आप एक काम करो, मैं अभी यहाँ नहीं लिखती हूँ, वो सभी को गूगल क्लासरूम में तो एक्सेस है ही, यू रिफर दैट. ओके, जो भी गूगल क्लासरूम में दूसरे लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वो भी आपको रिफर करने हैं. ओके, सो रिफर दैट क्वेश्चन. आई हैव रिटन अ एक्सप्लेनेशन आल्सो फॉर दैट. तो अभी हम लोग सिलेबस आगे लेके जाते हैं. चलो, रेडी, एवरीबॉडी रेडी? Okay, yes, good. So देखिए, we did cyathium. Cyathium is in euphorbia. It looks just like a single flower. हम लोग देख के वो सोच भी नहीं सकते कि ये इन्फ्लोरेसेंस है. तो हमको पता कैसे कि ये फ्लावर नहीं है, इन्फ्लोरेसेंस है? तो साइंटिस्ट स्टडी हाउ एग्जैक्टली इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट दे हैव डिसाइडेड दैट दिस इज एन इन्फ्लोरेसेंस एंड नॉट अ फ्लावर. अंडरस्टैंड? तो बीच में एक सिंगल फीमेल फ्लावर रहता है एंड उनके सराउंडिंग 5 या 6 मेल फ्लावर्स रहते हैं. ऑल द फ्लावर्स आर नेकेड क्योंकि उनमें कैलिक्स करोला नहीं है. ओके, दिस टाइप ऑफ, और ये कप शेप इन्वोल्यूकर, यानी जो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस जो है ना, वो ससाल्पिनिया में या गुलमोने कैसे लंबा सा दिखता है आपको, या जास्मिन में इतना लंबा नहीं है, जरा छोटा है. लेकिन यहाँ पे it has got modified to form a cup like structure, उसको इन्वोल्यूकर कहेंगे. अभी हाइपैंथोडियम यानी फिग लाइक, फिग का फ्रूट अंजीर जैसे है ना, वैसा ही वो इन्फ्लोरेसेंस भी वैसा ही होता है. तो यहाँ पे कुछ ऊपर की तरफ, यहाँ पे देयर इज अ ओपनिंग, ऊपर की तरफ देयर आर मेल फ्लावर्स, एट द लोअर साइड देयर आर फीमेल फ्लावर्स, इन बिटवीन न्यूटर फ्लावर्स. ओके, तो वास्प्स आके उनको पॉलिनेट करते हैं, इंसेक्ट्स, एंड ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है. मतलब वास्प कैन हैव अ गुड प्लेस, इसके अंदर ऐसे कैविटी रहती है और फिर फ्लावर है और ये कैविटी है, तो वहां पे अच्छी जगह है उनको एग्स ले करने को. वो फर्टिलाइज एग्स ले करते हैं, तो उनमें से वर्म्स निकलते हैं और वो धीरे धीरे आगे बाहर आके इंसेक्ट्स बन जाते हैं. ओके, सो दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज हाइपैंथोडियम. यहाँ पे फ्रूट पूरे इन्फ्लोरेसेंस से बनता है. ओके, पूरा इन्फ्लोरेसेंस एक ही फ्रूट बनाता है. ये मॉर्फोलॉजी अभी जो पढ़ा रही हूँ उसमें आफ्टर इन्फ्लोरेसेंस आई विल डू फ्लावर एंड देन आई विल डू फ्रूट आल्सो, तो तभी आपको समझेगा. देन वर्टिसिलास्टर तुलसी यानी ऑसिमम, मतलब साइमोस इन्फ्लोरेसेंस का ब्रांचिंग हो रहा है एंड इट इज अ डाइकेशियल साइम, यानी दो ब्रांचेस हो रहे हैं, इसके लिए डाइकेशियल साइम. ये सब याद ज्यादा नहीं रखना है. Only thing, it looks like a cluster of dicacial cymes and they arrange on the inflorescence axis. Example है Ocimum, tulsi. अभी capitulum inflorescence I am going to explain to you, which is most of you must be thinking that sunflower तो एक फूल होता है. So it is not a flower, it is an inflorescence. I am drawing a big sunflower. ये है स्टॉक है इन्फ्लोरेसेंस का, ये नहीं है, क्या बोलते हैं, ना तो पेडिसेल है ना तो पेडंकल है. अभी पेडंकल यानी इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस हैज बिकम फ्लैट एक्सपांडेड. ओके, and it has formed a disc-like structure which we call as receptacle. आई बात समझ में राधा? Receptacle is a disc-like structure formed by peduncle या inflorescence axis. ऐसे फ्लैट हो गया है. हम लोग जब सनफ्लावर देखते हैं तो what do you see on outer side? You can see bright yellow colored petals, correct? और अंदर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स आपको दिखते हैं. तो actually there are two types of flowers present and they are called florets. What is a floret? Small flower. Okay, आप नोटबुक में लिख लो, फ्लोरेट यानी स्मॉल फ्लावर, वेरी स्मॉल फ्लावर इज कॉल्ड फ्लोरेट. अब आउटर साइड में तो मैं वो यहाँ साइड में दिखा दूंगी. ओके, यहाँ पे
What type of floret is present? See, I will use some other color now. चलो रेड ही यूज करेंगे. हाँ, ये ऑरेंज कर सकते हैं. देखते हैं कितना ब्राइट है वो. ये है उसका ओवरी. ओके, फिर यहाँ पे छोटा सा कैलिक्स दिखता है. हम लोग पार्ट्स ऑफ फ्लावर करने वाले हैं अभी. फिर इतना बड़ा उसका इस तरह का करोला है. ओके, और यहाँ से स्टाइल स्टिग्मा कभी कभी आपको दिखेगा. सो दिस इज अ ओवरी and has got no ovule, empty ovary है वो. And this flower is known as, see, what is the name of this flower? It is called ray floret. Okay, and this is a neuter flower क्योंकि इसमें एंड्रोशियम नहीं है एंड ओवरी में ओव्यूल भी नहीं है. तो कैन इट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन? नो. तो न्यूटर का मतलब बताइए मुझे. आई हैव एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज न्यूटर. टेल मी. Genderless. करेक्ट, सेक्सलेस. उसमें ना तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है ना तो मेल सेक्स ऑर्गन्स है. सो व्हाई इट इज प्रेजेंट? व्हाट इज द पर्पस? इट इज प्रेजेंट फॉर करोला. इतना उसका एक्सपांडेड बड़ा सा है, ब्राइटली कलर्ड. So it is meant for attraction of insects, obviously for pollination. तो ये सभी, yes, क्रॉस पॉलिनेशन, करेक्ट. तो सभी जो साइड के जो है ना पेरिफेरी में, पेरिफेरी यानी एट द एंड पेरिफेरी में, तो ये सॉरी ये सभी जो ऐसे आपको दिखते हैं बड़े से, दे आर ऑल रे फ्लोरेट्स एंड दे डोंट टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन एट ऑल. अब बीच में जो फ्लावर्स है तो थोड़े से पुराने हो गए तो वो ब्राउनिश काले काले भी दिखने लगते हैं. ओके, तो मैं ये किस तरह के है मैं दिखाती हूँ. यहाँ पे पूरे फ्लावर्स बीच में भरे हुए हैं एंड दे आर एक्चुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ये है उनकी ओवरी, इसमें ओव्यूल है. फिर उनका छोटा सा ऐसे करोला है, येलो कलर का है. मैंने डिस्टिंक्ट कलर हो इसके लिए ये यूज किया है. यहाँ पे उनके स्टेमेंस सब कुछ होता है. ओके, सो व्हाट इज दिस फ्लावर कॉल्ड? दिस फ्लावर इज कॉल्ड डिस्क फ्लोरेट. मतलब ये पूरे डिस्क पे ये टाइप के फ्लोरेट्स है एंड दे आर बाइसेक्सुअल. नॉर्मल प्रॉपरली दो दे आर स्मॉल. इट इज इनफ्लोरेसेंस एक्सिस ऋतुपर्ण. रिसेप्टेकल is inflorescence axis which is modified to form a disc which we call receptacle. तो ये है पेडंकल. आपको समझ में आया? जो ससाल्पिनिया में आपको पूरा लंबा पेडंकल दिखता है ना, वो यहाँ पे ऐसा है, फ्लैट है. क्लियर ना सबको? ओके ओके राधा, नो प्रॉब्लम. या आई एम एक्सप्लेनिंग वंस मोर, डोंट वरी. So ये देखो, these are ray florets present at the periphery and disc florets at the center. तो ये मैं बताऊंगी पूरा सब कुछ वापस, don't worry. So यहाँ पे ऐसे flowers है जिनमें एंड्रोशियम, गाइनेशियम पूरे है. और ये ना सेंटर में जाओ ना तो एकदम छोटे छोटे रहते हैं और साइड में जैसे कि आप जाओ थोड़े बड़े बड़े रहते हैं. ओके, ऐसे रहते हैं. सो दीज आर all of them are disc florets, understand, and they actually are meant for reproduction.
तो सनफ्लावर के जो सीड्स होते हैं ना, वो यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इनके ओवरी से, इनके ओव्यूल से फॉर्म होते हैं. एवरी फ्लावर इज इंडिविजुअल सेपरेट फ्लावर. सी इन सनफ्लावर, इफ यू सी सनफ्लावर, आपको कैसे दिखता है सनफ्लावर? देखिए, या कोई भी उस फैमिली का फ्लावर, तो आपको ऐसे पेटल्स दिखते हैं साइड में, करेक्ट? और यहाँ पे ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा होता है ना फ्लावर. तो ऑल दीज एट द पेरिफेरी आर रे फ्लोरेट्स. What are ray florets? Listen, Radha. There is a ovary without ovule. ये स्टाइल स्टिग्मा है, बट इसमें ओव्यूल ही नहीं है. देयर इज नो एंड्रोशियम एंड अ लार्ज कैलिक्स, छोटा है, करोला बड़ा सा करोला है, एंड दैट परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ द ब्लैक थिंग इज दैट ओव्यूल विच इज फर्टिलाइज्ड, और उसका सीड बन रहा है. अगर यंग यंग होंगे ना तो वो ग्रीनिश दिखेंगे. ओके तो ये जो है ना बड़ा सा करोला, दैट इज मेंट फॉर अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स, ये सब. और यहाँ पे आपको ये बीच में जो दिख रहे हैं, ये जो सभी, दीज आर ऑल डिस्क फ्लोरेट्स, नंबर ऑफ देम. Larger ones are present at the periphery, younger ones are present in the middle. Okay, this is how they are fully arranged everywhere, and these are actually producing sexual reproduction इनमें होता है, और ये खाली insects को attract करते हैं. So what is this inflorescence called as? The inflorescence type is capitulum inflorescence, या इसे कॉमनली हेड इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है. ओके, मैम एस्टर के फ्लावर्स भी इसी टाइप के होते हैं. हाँ बोलो. Do all disc florets reproduce? Yes, if they get many insects, many pollen grains are available, so they can all form the seeds. Ma'am, Okay, ma'am. the like ray flower are neuter. Yes, they are neuter. Okay. क्योंकि ओवरी है बट ओव्यूल नहीं है, तो मतलब क्या? करेक्ट. Yes. एंड एंड्रोशियम भी नहीं है, तो ना तो मेल सेक्स ऑर्गन प्रॉपर है ना, या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कुछ नहीं है. बिना ओव्यूल के ओवरी का मतलब ही नहीं. तो दे आर न्यूटर फ्लावर्स, दे डोंट पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन. उनका काम क्या है? बड़ा सा करोला है तो दे कीप अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, दैट्स इट. क्लियर? अभी इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए. And Ma'am, ma'am, the disc-like structure is called receptacle. We call them like. Yes, that is formed by inflorescence axis. Ma'am, Yes, Kaushik, you were saying something? येस मॅम, मी विचारत होतो की हे झेंडू मध्ये पण हेच असतं का? हो, त्या सगळ्या टाईपचे फुलं आहेत ना. एक ट्रायडॅक्स नावाचं एक अजून एक सांगते तुम्हाला, ते खूप कॉमन फुल आहे बरं का. त्याच्या ना मध्ये असं वीड आहे, वीड एकदम 1-2 फूट वालं फक्त असतं ते. तर त्याच्यामध्ये ना असं असं दिसतं येलो कलरचं, आणि साईडला जरा असं ऑफ व्हाईट कलर मध्ये, आता व्हाईट काढून नाही शकत मी, व्हाईट असतं खरं पण मी हा कलर, हे असे पेटल्स असतात. आणि छोटस प्लांट असं एकदम लॉंग स्टेम वालं असं छोटं प्लांट असतं, लॉंग. सो दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड ट्रायडॅक्स. ma'am, येस, टेल मी. पण झेंडूच्या फुलात असं मध्ये दिसत नाही काही डिस्क. हो, त्याच्या आत असतं, जरा मधल्या साईडला असतं, पण त्यांची फॅमिली एकच आहे, कळलं का? तर त्याच्यामुळे इथे कसं आहे माहिती का, रे फ्लोरेट्स कमी आहे, पेरिफेरीला आहे, एकदम फ्लॅट आहे. तिथे असं थोडंसं वेगळं आहे, म्हणजे तू अर्ध कट करून बघितलं ना तर आतमध्ये अशा टाईपचे फुलं असं टाईप दिसतं ते. ऍस्टर मेनली, ऍस्टरची जी फ्लावर्स आहेत ना, ऍस्टर, दे बिलॉंग टू ऍस्टर. फुलं माहिती आहेत ना तुम्हाला? Yes, ma'am. हाँ, सो एस्टर इनका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. तो इसके लिए ये फैमिली जो है ना, विच इंक्लूड सनफ्लावर, एस्टर, ट्राइडैक्स, उसका नाम है एस्टरेसी फैमिली. ओके, डन. मॅम, हे ट्रायडॅक्स जे आहे त्याला रावण पण म्हणतात ना?
हा नाही मला माहिती आहे. हे नाही रावण म्हणजे का म्हणावं, ते इतकं छोटं नाजूक फुल नाही आहे नाही, म्हणजे. त्याचं काय करतात की त्याच्या देठाच्या इथे त्याला धरतात आणि त्याला टिचकी मारली की त्याच्या रावणाच्या डोक्यासारखं उडतं ते फुल. रिअली? हो, म्हणून त्याला तसं म्हणतात. अच्छा, एक मिनिट, आय चेक. मॅम, हा, येस, टेल मी. रिसेप्टॅकल पेडंकलचं फंक्शन करता का? एक मिनिट. काय मला मिळत नाहीये. एनिवे असेल बाबा. हा, रिसेप्टॅकल पेडंकलचं फंक्शन नाही, रिसेप्टॅकल म्हणजे पेडंकलच आहे. रिसेप्टॅकल इज पेडंकल ओनली. So is it modified हाँ, इट इज peduncle? मॉडिफाइड. लंबा होने के बजाय वो फ्लैट हो गया है. Okay, ma'am. हाँ, because what is the function of peduncle? Bear the flowers. See, it is bearing the flowers. अभी ये उसका अपाइकल बर्ड यहाँ पे है. ओके, तो देखो लोएस्ट फ्लावर्स, इफ हैड इट बीन अ लॉन्ग वन तो ये लोअर फ्लावर्स रहते हैं जो बड़े, और अंदर के ये छोटे छोटे ऊपर वाले. गॉट इट? ठीक है. सो आई होप यू हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट. आई एम गोइंग. Ma'am, just a second. या टेक इट. नहीं, क्या होता है, ब्लैक क्या दिखता है चैत्राली? वाई दे लुक ब्लैक इन कलर, यू नो? अगर फर्टिलाइजेशन होने के बाद उनके सीड्स जो बन जाते हैं ना अगर ओवरी के अंदर, तो दैट पार्ट लुक्स ब्लैक इन कलर. सो इन अ मैच्योर सनफ्लावर इन्फ्लोरेसेंस दे विल लुक ब्लैक इन कलर. थोड़ा यंग है तो इतने ब्लैक नहीं दिखते क्योंकि उनमें फर्टिलाइजेशन बाकी है. आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे देखिए, दिस इज योर डायग्राम. ये देखिए, see here, this is peduncle has expanded. Understand, this is a peduncle which has expanded to form receptacle, that is disc-like structure. ठीक है. ये है ब्रैक्ट्स. ये भूल जाओ, फाइलरीज वगैरह कुछ नहीं. ये ब्रैक्ट्स है, जो ब्रैक्ट्स यानी a small leaf in the axil of which a flower arises. ओके, ब्रैक्ट का डेफिनेशन मैंने आपको दिया है कि नहीं दिया है? नहीं दिया होगा मोस्टली ना. No, ma'am. ओके, सो हम लोग फ्लावर में No, करेंगे. ma'am. हाँ, ये देखो, ये है रे फ्लोरेट, करोला ऑफ रे फ्लोरेट, बहुत बड़ा. एंड करोला ऑफ डिस्क फ्लोरेट ऐसे होता है, और ये सब ओवरीज है उनके. हाँ, ब्रैक्ट्स का डेफिनेशन फिर से बताओ ना. बताया ही नहीं है अभी. अभी आपने कुछ बोला ना. अरे मैंने कहा फ्लावर में करेंगे. ओके मैम. फ्लावर, जब अभी फ्लावर शुरू कर रही हूँ ना तभी ब्रैक्ट बताती हूँ. I just confirm that I have not told you. They look whitish, yellowish in color. अनन्या, when they are not fertilized, बहुत young अगर है और fertilization नहीं हुआ है ना, तो whitish yellowish दिखते हैं बीच में, और फिर वो सीड्स उनके जब बन जाते हैं ना यहाँ पे ओवरी में, तो वो काले पड़ जाते हैं. फिर डार्क ब्राउन दिखते हैं क्योंकि सीड्स आर डार्क ब्राउन, सो ऑलमोस्ट डार्क कलर दिखते हैं. तो देखिए, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस फ्लैट डिस्क शेप एंड बेयर्स रे फ्लोरेट्स एट पेरिफेरी एंड डिस्क फ्लोरेट सेंट्रीपिटली अरेंज. अगर आपको सेंट्रीपिटली अरेंज का मतलब पता है कि नहीं पता है? इफ यू डू नॉट नो, राइट इन द नोटबुक. दैट इज ओल्डर एट द पेरिफेरी, यंगर टुवर्ड्स द सेंटर. मतलब पहले बाहर फॉर्म होते हैं और बाद में अंदर. सो फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है, दैट इज फ्रॉम आउटसाइड टू कमिंग टू द सेंटर. यस, वी कैन, प्रज्ञेशा. मैम, ओल्डर एट द पेरिफेरी, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट लिख लो सब लोग. ओल्डर एट द पेरिफेरी, यंगर एट द सेंटर.
मतलब बाहर ये हुए हैं ना ऑब्वियसली फॉर्म, फिर अंदर अंदर अंदर, और सबसे यंग कौन से है ये, करेक्ट. सो फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, करेक्ट ना. दैट इज सेंट्रीपिटली अरेंज्ड. Younger Sunflower? at ends and older at center. बिल्कुल उल्टा. यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ओल्डर एट पेरीफेरी. मेरे डायग्राम में भी मैंने दिखाया ना, वो देखो जरा क्या दिखाया मैंने. पहले ये फॉर्म हुआ होगा कि पहले ये फॉर्म हुआ होगा, टेल मी. ये ना. Yes, ma'am. हाँ, तो ओल्डर एट पेरीफेरी, यंगर एट द सेंटर, मतलब ये हुआ, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, बाहर से अंदर फ्लावर फॉर्मेशन हो रहा है. दैट इज सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट. ओके, चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ. आई एम Ma'am. हाँ, यस बोलो. Ma'am, can you explain the verticillaster again, which you explained in morning, because I didn't understand. ओके, 1 मिनट. इसमें ये डायग्राम नहीं होगा. वर्टिसिलास्टर का मतलब ये है, एक मिनट, हाँ, कुछ ज्यादा उसमें आपको नहीं जाना है. सो ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस ऐसे रहता है तुलसी का, और उसको ना ब्रांचेस रहते हैं, एंड देन दे डिवाइड अगेन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. और फिर यहाँ पे डाइकेशियल साइम रहेगा. तो ये पकड़ो, तो इधर बड़ा फ्लावर, इधर और इधर छोटे छोटे फ्लावर, इधर बड़ा फ्लावर, इधर और इधर छोटे छोटे फ्लावर, ऐसे. और ये स्टेम पे पूरा राउंड 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 सब क्लस्टर में इतने सारे ऐसे ये रहते हैं. तो दो older at the apex and 2 younger below is called as dicacial cyme, and it is cluster, मतलब number of dicacial cymes are arranged on this main axis. इसको बोलते हैं verticillaster. Clear? Yes, ma'am. ये आपको इतना एक्सप्लेनेशन कोई पूछेगा नहीं, मतलब समझना जरूरी है, बट कोई पूछने वाला नहीं. आपको नाम और एग्जाम्पल ही उसका याद रखना है. ऑलराइट, ठीक है. अब चलो जाते हैं यहाँ पे. ये हो गया हमारा, इन्फ्लोरेसेंस इज डन. ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ. दिस इज इजी है अभी शुरुआत में, तो दिस ऑल ऑफ यू नो आई गेस, करेक्ट. सी, व्हाट इज द स्टॉक ऑफ द फ्लावर कॉल्ड? टेल मी क्विक. Pedicel. करेक्ट, पेडिसेल. तो ये पेडिसेलेट फ्लावर है. ओके, और ये देखो थोड़ा सा एक्सपांड हुआ ऐसे है, दैट इज कॉल्ड रिसेप्टैकल. ओके, यहाँ पे रिसेप्टैकल यानी थोड़ा कप शेप या ऐसा स्ट्रक्चर है, बट ये एक्चुअली ये क्या है, ये रिसेप्टैकल और वो सनफ्लावर का रिसेप्टैकल दो अलग चीजें हैं. अंडरस्टैंड? ओके, डिस्क लाइक होता है तभी रिसेप्टैकल कहते हैं. मैं बताती हूँ अभी एग्जैक्टली क्या है ये. फिर ये समझ लो, ये है, यू नो दैट दिस इज कैलिक्स, करेक्ट, ग्रीन कलर. यू नो दैट दिस इज कलरफुल, जो भी है वो करोला रहता है. देन कैलिक्स एंड करोला आर नॉन एसेंशियल वर्ड्स because they do not participate actually in reproduction. फिर ये है stamens, that is androecium, male reproductive whorl, and ये है ovary style stigma यानी gynoecium, female reproductive whorl. ठीक है, अब मैं व्हाइट बोर्ड पे सब कुछ पहले आपको समझा रही हूँ, और कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी, बिकॉज आपको मेरे ख्याल से फ्लावर के बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए. ओके, सो ये मैंने पहले निकाला एक स्टॉक ऑफ द फ्लावर विच आई एम लेबलिंग एज पेडिसेल. अभी एक टर्म याद रखो, पेडिसेल के एट द टिप ऑफ द पेडिसेल, दिस पार्ट विच इज देयर, दिस पार्ट, यहाँ पे मैंने सिंपलेस्ट जो जिस तरह का रहता है वो निकाला है. ओके, दिस इज टिप ऑफ द पेडिसेल एंड दैट इज कॉल्ड थैलेमस.
तो ये थैलामस कभी कभी कप शेप रहेगा तो उसको रिसेप्टैकल कहते हैं, या फैला हुआ डिस्क लाइक रहेगा तो उसे रिसेप्टैकल कहते हैं, समझो। तो वो रिसेप्टैकल सनफ्लावर के इन्फ्लोरेसेंस का अलग, ये अलग, समझ लो। ये दिस इज अ सिंगल फ्लावर, फ्लावर का पार्ट है। सो बेस्ट थिंग इज वी कॉल इट नॉट रिसेप्टैकल, दिस इज थैलामस, ये याद रखो। अब थैलामस पे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थैलामस? All the whorls are present on the thalamus. What are the whorls present? The lowermost whorl is calyx. It is denoted by K. आपको ये symbol याद रखना है. Okay, it is green in color, you know that, and it is made up of units called as sepals. पता है ये आपको? हाँ या ना? हाँ मैम। Yes. So who will tell me what is the function of sepals? I'm labeling it as flower in bud condition. Protect the flower in bud correct. condition. तो आप रोज के लिए आपने देखा होगा, जब बर्ड कंडीशन में ये फ्लावर है, ओके, तो कैलिक्स जो है ना, सेपल्स, वो पूरे उसको कवर करते हैं, and they protect the flower in bud condition. That is the function of calyx. And calyx, that is sepals, are green in color also. So थोड़ा photosynthesis भी कर लेते हैं, लीफ को हेल्प करते हैं, बट कितना करेंगे? थोड़ा सा। क्लियर? अब नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा करोला। मैं कोई भी टिपिकल फ्लावर जनरल निकाल रही हूँ, ये कोई भी नाम नहीं ले सकते इस फ्लावर का, सिंपलेस्ट फ्लावर जो है वो मैं दिखा रही हूँ। ये है करोला डिनोटेड बाय सी। सो दिस इज करोला डिनोटेड बाय सी एंड it is made up of units known as petals and generally they are brightly colored. अभी मुझे करोला का फंक्शन बताइए। Attract insect. ओके, अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, बट अगर कलरफुल नहीं है और इंसेक्ट पॉलिनेटेड अगर नहीं है तो yes, protection of inner essential whorls, very correct. ओके, तो अंदर क्या है हम लोग देखते हैं अभी। सो ये बन गए हमारे, देखिए एवरीथिंग इज अराइजिंग फ्रॉम द थैलामस, यू अंडरस्टैंड दैट। सो दीज आर द स्टेमेंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्ल को क्या कहेंगे? एंड्रोशियम, डिनोटेड बाय ए। 1 minute, I'll see the chat, let me complete this. This is made up of stamens and this is male reproductive whorl. Whorl यानी circle. Okay, Isha, that's right, Isha. Okay, and सबसे अंदर that is gynoecium, which is made up of a single ovary, a style and a stigma. So I'm labeling it as G, that is gynoecium, which is denoted by G. And what are, जैसे कि calyx is made up of sepals, corolla is made up of petals, androecium is made up of stamens. So what is gynoecium made up of? What are the units called? Carpels. Very correct answer. Perfect. Carpels. And what is a single carpel made up of? Ovary, which bears the ovules, then style and stigma. Correct? वैसे stamen किस चीज से बनता है? 1 minute. Stamen is made up of Anther and filament. correct, anthers and generally 2 होते हैं ना, इसके लिए anther and filament means a stalk. Very correct. ठीक है, so the first 2, ये सभी आप, ये सब चीजें आपको पता है, these are called as non-essential whorls.
नॉन इसेंशियल वर्ल्स दोनों, और these two are called as essential worlds because they actually take part in reproduction. This is female, ये फीमेल का सिंबल है, female reproductive world. Okay, gynecium. Okay, what is the function of thalamus? Thalamus is tip of the pedicel first. उसका position क्या है? At the tip of the pedicel. Okay, and all four whorls are arranged on it. एक के अंदर एक, एक के अंदर एक. बात समझ में आई? सिंपल है ना? क्या क्या डाउट्स है पूछिए जल्दी जल्दी. मैम we can use pistil also na, instead of carpal. Yes, but pistil is an old term, you know. Pistil is a term. मैं pistil इंट्रोड्यूस करूंगी जब हम लोग gynoecium का डिटेल करेंगे. But pistil no more, we don't use more often that. Okay? वो पुरानी टर्म हो गई अभी. और कुछ पूछना है इसके बारे में? टेक अ स्क्रीनशॉट. अभी मैं और एक चीज इसके बारे में आपको समझा रही हूँ. आई एम चेंजिंग द पेज. यू टेक अ स्क्रीनशॉट. हैव यू डन इट? मैम, इज रिसेप्टेकल द सेम एज थैलेमस? नहीं 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 नहीं, रिसेप्टेकल वो डायग्राम मुझे इंटरनेट पे जो मिला है ना, तो कुछ कुछ फ्लावर्स अगर कपशेक होंगे ना तो उसको रिसेप्टेकल कहते हैं. बट थैलामस इज एप्रोप्रिएट वर्ड. अभी वो अब थैलामस ही पकड़ो. मुझे सबसे अच्छा जो डायग्राम इंटरनेट पे मिल जाता है वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ. समझ में आया? थोड़ा सा कपशेप है, इसके लिए रिसेप्टेकल कहा है. उधर लेकिन यूजुअल फ्लावर है वो ऐसा ऐसा रहता है, टिपिकल. और ये सब डिटेल में हम लोग अभी उसके बहुत ज्यादा वेरिएशन हम लोग कर रहे हैं, तो आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. यस. Should we write receptacle as a word for thalamus when? No, don't write. बिल्कुल नहीं लिखो. Okay? Ma'am. हाँ. Ma'am, when the flower has only gynoecium, that time corolla is important ना? करोला हमेशा इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा इम्पोर्टेंट. अभी आप एक होमवर्क लिख लो पहले. योर फर्स्ट होमवर्क इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसिमोस एंड साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. इजी एकदम, जो हमने किया हुआ है. तो आप नोटबुक में ऐसे पेज डिवाइड करके उसके पॉइंट्स लिख के रखेंगे. ठीक है? Racemose and cymose type of inflorescence. First. Second homework is write a note on Hypanthodium inflorescence. First distinguish between racemose and cymose. तो आपको खाली points लिखने हैं और example लिखना है, कोई डायग्राम नहीं चाहिए मुझे. फिर हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, राइट अ नोट. उसमें आप डायग्राम भी निकालेंगे एंड नोट लिखेंगे. ये सब 2 मार्क्स के क्वेश्चन के हिसाब से उतना ही आपको लिखना है. और थर्ड होमवर्क, थर्ड होमवर्क का क्वेश्चन है sketch, label and describe. Sketch, label and describe a typical flower. ओके तो आपको इस तरह का फ्लावर ड्रॉ करना है नोटबुक में. फिर ईच वर्ड यू विल राइट लिटिल बिट प्रॉपर. अभी मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप एक छोटा सा सेंटेंस में लिखेंगे और हर एक का फंक्शन भी लिखेंगे, हर एक वर्ड का फंक्शन भी लिखेंगे. पेडिसेल यानी क्या आप लिखेंगे, स्टॉक ऑफ द फ्लावर. थैलामस यानी क्या, ये यहाँ लिखा है वो लिखेंगे. फिर ऑल द वर्ड्स, इसेंशियल वर्ड्स कौन से है,
हर एक वर्ड ऐसा शॉर्ट नोट आप तैयार करेंगे. गॉट इट? ये आपका होमवर्क है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर तक करना है. मतलब मेरा लेक्चर अभी होगा थर्सडे. ओके, अब ध्यान से सुनो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखा रही हूँ. सी, फ्लावर is called as a modified shoot. ऐसे क्यों इसे कहेंगे? It is called as a modified shoot. You know that it is formed by a bird, correct? ये bird अभी terminal हो सकता है या axillary हो सकता है, but it is formed by a bird. And what is a bud? Tell me. Bud is a condensed shoot. अगर वो फ्लावर नहीं बनाएगा बर्ड, तो दूसरा क्या बनाएगा? टेल मी, आंसर माय क्वेश्चन. इफ द बर्ड, ब्रांच. वेरी करेक्ट आंसर. तो ब्रांच इज अ शूट, करेक्ट. तो ये रिप्रोडक्टिव बर्ड जो है उसने फ्लावर बनाया है, तो इट इज अ मॉडिफाइड शूट. तो हम लोग देखते हैं ये कैसे मॉडिफाई हो गया. मॉडिफिकेशन का मतलब आपको पता है. तो ओरिजिनली अगर ये ऐसा है, शूट ऐसे होता, देखिए, तो ये उसके लीव्स है. हाँ, यू नो दैट दे कैन बी मोर लीव्स एट अ नोड. ये उसका नोड है, करेक्ट. ये उसका नेक्स्ट नोड आ गया, उस पे भी आपको लीव्स मिलेंगे. ठीक है, ये उसका नेक्स्ट नोड है और ये उसका नेक्स्ट नोड है. ऐसे टाइप का ये शूट है. इमेजिन करो, दिस इज अ शूट. और स्मॉल नोड एंड इंटरनोड नहीं. डोंट स्टॉप रिफरिंग टू गूगल इफ यू आर डूइंग दैट. ये देखो, दिस इज एन इंटरनोड. ओके, अब जब फ्लावर फॉर्म होता है तो क्या होता है, देखो. ओके, व्हेन द फ्लावर इज फॉर्म्ड, द लोअरमोस्ट नोड लीव्स, these leaves form the calyx. The next node के leaves form corolla. फिर उसके नेक्स्ट नोड के जो लीव्स है, they get modified to form stamens. और लास्ट नोड के जो लीव्स है, they get modified to form carpels. And और एक चीज क्या होती है मैं बताती हूँ. Internodes become very short. यहाँ पे मैंने जो इंटरनोड दिखाया जो इतने छोटे हैं कि कैलिक्स के जस्ट अंदर करोला है, करोला के जस्ट अंदर स्टेमेन है, एंड स्टेमेन्स के जस्ट अंदर कार्पेल्स. ओके, तो इंटरनोड्स हैव बिकम वेरी शॉर्ट. तो अभी ये कैसे बने ये तो देखो. तो इसका कैलिक्स बनने में कोई ज्यादा ये नहीं है. ये अगर लीफ है, ये देखो, ये अगर लीफ है तो इसका थोड़ा छोटा साइज हो गया और ग्रीन ही तो रहना है. ये बन गया सेपल, सिंपल. करोला जब उसको बनना था, ओके, तो उसका चेंज इन शेप हो गया. ओके, चेंज इन शेप and it became more colorful also, so it became petal. ओके, अब इसको स्टेमेन जब बनना है तो देखो कैसे हुआ. एक स्टराइल पार्ट का फिलामेंट बन गया. ओके, और ऊपर उसके फर्टाइल पार्ट का के एंथर्स बन गए. So this is a fertile part and this is a sterile part. ऐसे वो चेंज हो गया.
ओके और ये जब अगर ये जो बनना था कार्पेल तो क्या हुआ, ऐसा मानो ऐसा लीफ है, ओके दिस इज अ लीफ ओरिजिनली, तो इसके ऊपर ओव्यूल्स बने ऐसे पहले और फिर अलग अलग तरह से वो फोल्ड हो गए और फिर बन गया कार्पेल, क्योंकि कार्पेल हमेशा इस तरह का नहीं रहता है, अलग अलग टाइप का जो अभी हम लोग पढ़ने वाले। सो दिस इज हाउ फ्लावर, every node the leaves have got modified to form successive whorls and it has formed a flower. This is how modification होता है। क्लियर? ये आपको ये सब कोई पूछने वाला नहीं है, बट ये बेसिक अंडरलाइन चीज है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए बेसिकली। तो ये कहीं रेफरेंस आ जाए क्वेश्चन में तो आपको तुरंत वो क्वेश्चन भी आ जाएगा। Ma'am, but we are generally not able to see this thing. नो 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 नो, ये मॉडिफिकेशन अभी धीरे धीरे नहीं होता है, ये हो गया, ऑलरेडी हो गया है, मतलब वेरी यंग स्टेज में। मैंने ऐसे होता ही नहीं है, ऐसे होने के बजाय डायरेक्ट ऐसे फॉर्म हो गए वो। ओके मैम। मतलब बर्ड्स में ऐसा होता है क्या कि पहले ऐसे बाकी के वर्टिब्रेट के जैसे पाव तैयार होते हैं और फिर उसके विंग्स हो जाते हैं क्या फोर लिम्ब के? नहीं ना, विंग्स ही आ जाते हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? in case of birds, four limbs are modified to form wings. तो वो इस तरह का इवोल्यूशन हुआ है, वो मैं हाँ इवोल्यूशन हो गया है, ठीक है। चलो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो आई विल गो बैक टू द स्लाइड नाउ। Okay, I'm going back. I hope everybody is understanding. So ये अभी पढ़ते हैं, देखिए ये रिसेप्टैकल निकाल दो, ये आपको थैलामस ही अभी आपको इसको कहना है। ओके रिसेप्टैकल का मतलब ये थोड़ा सा कप शेप उन्होंने दिखाया है, इसके लिए वो नाम दिया है। अब देखिए नॉन एसेंशियल वर्ल्स, सी फ्लावर मॉडिफाइड शूट फॉर रिप्रोडक्शन, नॉन एसेंशियल वर्ल्स कैलिक्स एंड करोला। Calyx denoted by K, green sepals, function protection of inner whorls in bud condition. Corolla C, colored petals, function attraction of insects for pollination and protection of inner whorls. Whorls miss out हो गया। अब ये पेरियांथ मैंने अभी बताया नहीं है आपको, बट मैं अभी बताती हूँ। ओके सी यू नो डाइकॉट और मोनोकॉट के लीफ में क्या फर्क होता है आपको पता है? डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में है। फ्लावर में भी फर्क होता है। डाइकॉट में कैलिक्स ग्रीन होता है, करोला यूजुअली कलरफुल होता है, बट मोनोकॉट्स में ऐसा कोई डिस्टिंग्विश दोनों में कर ही नहीं सकते। दोनों एक दूसरे के सेम होते हैं, they are not separate, they are just out, थोड़ा सा outer wall जैसा और एक inner wall जैसा ऐसे दिखता है। So they are identical two walls. So calyx and corolla are undifferentiated and we call them perianth. ऐसे क्यों है मैं बताती हूँ बाद में थोड़ा। ओके तो calyx and corolla are called perianth in case of monocot because they cannot be differentiated from each other. They look both exactly identical. Okay. अब essential whorls are androecium and gynoecium. Androecium is a made up of stamens. And anther के अंदर हम लोग ये डिटेल स्ट्रक्चर करने ही वाले हैं। तो anther के अंदर क्या होता है? पोलन सैक्स होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये हमको डिटेल करना है। Gynoecium made up of carpels, that is ovary contains the ovules, ये भी डिटेल में करेंगे। The whorls of the flower are arranged on a massive tissue, ये called as thalamus. ठीक है, अब क्या डाउट है पूछिए।
मैं पोलिंग लेना चाहूंगी पार्ट्स ऑफ फ्लावर और जो भी अभी मैंने पढ़ाया. इफ यू हैव अंडरस्टूड more than 90%, you say yes. And if you understood less than 90%, आपको कुछ डाउट्स है, कंफ्यूजन है, say no. किसी एक ने नो पे मार्क किया है, बाकी सारे तो the one who has marked, please raise your hand. दो, हाँ, एक किसी ने तो ये नो पे मार्क गलती से किया होगा या कुछ डाउट होगा. मार्क कीजिए फटाफट या हाथ रेज कीजिए. रेज योर हैंड्स यू हैव नॉट हैव सम डाउट्स. ओके, so I end the polling. Everybody, most of you have answered yes. तो मैं अभी आगे बढ़ूंगी, कुछ डाउट नहीं है आपको. ये मैं ब्रैक क्या है मैं अभी बताती हूँ. एंड आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू यू व्हाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कैलिक्स एंड करोला. पेरियांथ क्यों है ये चीज अभी बताती हूँ मैं. ओके, व्हाई देयर इज पेरियांथ इन मोनोकॉट्स. अब मुझे आप मोनोकॉट प्लांट के जो जिनके आपको फ्लावर्स आप देख सकते हो, ऐसे या दूसरे प्लांट के नाम बताएंगे. विच मोनोकॉट्स डू यू नो? Tell me the names of some monocot plants. हेलो, मोनोकॉट प्लांट के नाम नहीं बता रहे आप लोग. What's wrong? कौन से मोनोकॉट प्लांट्स आपको पता है भाई? जल्दी जल्दी. हाँ, वीट. ऑर्किड. ओके, वीट इज गुड. Lilies. ऑर्किड छोड़ दो. यस, लिलीज ठीक है. वीट एक वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट. राइस. मेज, राइस, करेक्ट. देन डू यू नो अ फ्लावर? ऑनियन भी है ना. ऑनियन आप बताए, जिसका फ्लावर आप देख सकते हो, वो इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस से. ट्यूबरोज कितने लोगों को पता है? बनाना, यस, बनाना आल्सो इज अ स्माइलैक्स. तो मैम स्माइलैक्स. स्माइलैक्स मैंने भी उसके फ्लावर्स नहीं देखे. पाम में से कुछ अलग ही ये होता है. पाम छोड़ दो अभी. ये देखो ट्यूबरोज. हाउ मेनी ऑफ यू नो ट्यूबरोज? कोई भी ऑनियन एंड ट्यूबरोज. देखिए ये दो फ्लावर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ. यू नो ट्यूबरोज, गुड. तो दिस व्हाट कलर इज इट ज्ञानेश्वरी? व्हाइट कलर. करेक्ट. कोई भी बुके फ्लावर्स का ट्यूबरोज के बिना हो ही नहीं सकता. अब मैं ना ये कलर यूज करती हूँ, लेकिन सोचो ये व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे वो कैसे करेंगे ना. तो वो ऐसे फ्लावर्स दिखते हैं. देखिए, और उसका ना बड़ा सा ऐसा एक के ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स का ऐसा स्टेम ऐसा बना हुआ रहता है. मैम ट्यूबरोज मीन्स निशिगंध, राइट? करेक्ट, निशिगंध, एकदम परफेक्ट. ओके, तो निशिगंध सगळ्या ह्याच्यामध्ये बघा, इन एव्हरी bouquet, these flowers have to be there. Okay, this is known as tuberose. तो इसमें देखो कैसे है. इसके ना 1, 2 और 3 ये आउटर वर्ल है, और थोड़ा सा 1, 2 और 3 ये इनर वर्ल है. ऐसे करके 2, 3, 4, 5 और 6
ऐसे फूल बनता है, ये पूरे यूनाइटेड है खुद के एक दूसरे के साथ, और यहाँ पे ओवरी ऐसे दिखता है वो ट्यूबरोज फ्लावर। तो ये ना, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ ओरिजिनली होता है, फिर ये बाहर होता है और ये बाहर, और ये तीन अंदर वाले, लेकिन ऐसे कुछ समझता ही नहीं है ना अभी। ऑनियन का फ्लावर अभी दिखाती हूँ कैसे है यहाँ पे। ओके, ऑनियन का फ्लावर बिल्कुल छोटा होता है। ओके, बड़ा मैं बड़ा निकाल रही हूँ, एकदम ही छोटा, मतलब आधा सेंटीमीटर उसका डायमीटर रहेगा, ऐसा छोटा सा फ्लावर है ऑनियन का। या ओवरी, नीचे उसके ओवरी एकदम क्लियर दिखती है ट्यूबरोज में। ऑनियन का फ्लावर कैसे दिखता है पता है? उसके खाली पेरियान दिखाती हूँ, 1 2, ये फ्री है, हाँ, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, दिस इज अटैच टू ईच अदर, बट ये फ्री है। तो ये 3 है, ये अंदर वाले सोचो, और ये 3 थोड़े से ऑल्टरनेट, 3 थोड़े से बाहर, देखा ऐसे होते हैं। तो ये 3 अंदर, ये 3 बाहर, दोनों एग्जैक्टली लाइक ईच अदर। तो दिस इज ऑनियन फ्लावर। ओके, तो मोनोकॉट की और एक बात है। ओके, इन मोनोकॉट्स और ये व्हीट राइस मेज, इनके जो फ्लावर्स है ना, they are very small flowers. ओके, और उनका पेरियान जो है which is highly reduced। तो मैं फैमिली जब करेंगे तभी मैं कैसे होता है वो दिखाऊंगी। वो ऐसे क्यों होता होगा? इन स्पेशली व्हीट राइस मेज, ये जो फैमिली है ना, मैंने बार बार बता रही हूँ, हम लोग जो स्टेपल फूड खाते हैं वो फैमिली है ग्रामिनी या पोएसी फैमिली। इनका पेरियांत एकदम रिड्यूस क्यों है? कैन यू थिंक? Because these are most monocots are wind pollinated flowers। ये wind pollinated है, तो उनको, ये तो फ्रेग्रेंट है, ये इनसे इंसेक्ट पॉलिनेशन हो सकता है ट्यूबरोज में, बट ये सब जो है ना, व्हीट राइस मेज ज्वार बाजरा सब कुछ, ये सब विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स है। उनको अट्रैक्टिव करोला पेरियान करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलराइट, क्लियर? और एक बात देखिए आपने, मैंने ट्यूबरोज में भी कितने पेरियान मेंबर्स बनाए? 6। ऑनियन में भी 6 बनाए। तो हियर द फ्लावर इज ट्राइमेरस, यानी 3 या उसका मल्टीपल नंबर रहता है। Whereas in case of डाइकॉट्स, डाइकॉट्स अगर आप देखते हैं, ओके, तो जैस्मिन कितने पेटल्स रहते हैं? 5। हिबिस्कस कितने पेटल्स रहते हैं? 5। मस्टर्ड का जो फ्लावर है उसमें 4 रहते हैं, तो 4 या 5 का मल्टीपल, सो टेट्रा और पेंटामेरस फ्लावर्स। और इसमें मोनोकॉट में हमेशा ट्राइमेरस फ्लावर्स, खाली पेटल्स पेरियांथ ही नहीं, बाकी स्टेमेन्स, एंड्रोशियम, उनका भी 3 या से मल्टीपल, या इनका भी 4-5 से मल्टीपल हो सकता है, हमेशा होता है ऐसा नहीं है, बट स्पेशली रिगार्डिंग कैलिक्स एंड करोला ओवर हियर एंड रिगार्डिंग पेरियांथ इट इज ट्राइमेरस। क्लियर? समझ में आई बात? तो ये विंड पॉलिनेटेड है मोनोकॉट्स, मोस्टली, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स आर विंड पॉलिनेटेड, तो उनको कैलिक्स करोला, फिर करोला ब्राइटली कलर्ड, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और मोनोकॉट के ये देखो फ्लावर्स भी कितने बड़े बड़े, इन्फ्लोरेसेंस अलग ही, बहुत बड़ा मॉडिफाइड इन्फ्लोरेसेंस है। अभी व्हीट मेज, इसका इन्फ्लोरेसेंस है तो कौन सा, मैंने बताया ही नहीं है अभी आपको, वो मैं जब वो फैमिली करेंगे तभी बताऊंगी। तो उनका इन्फ्लोरेसेंस सब एक जगह है। फिर आप ये मेज का भुट्टा खाते हो तो उसको कैसे बाहर के कवर्स हम लोग निकाल देते हैं, करेक्ट? तो ऐसे सब जगह वो पूरा कवर्ड रहता है वगैरह वगैरह, ऐसे अलग कैरेक्टर्स हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर ना? ठीक है।
चलो अब मैं वापस जा रही हूँ. इफ यू हैव, आई होप यू मस्ट हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. आई एम गोइंग बैक टू द स्लाइड. यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है? फर्स्ट थिंग ये देखिए, यहाँ पे देखो, पेंटामेरस और टेट्रामेरस एग्जाम्पल डाइकॉट्स एंड ट्राइमेरस एग्जाम्पल मोनोकॉट्स. ठीक है, फ्लावर्स. अब हमको ये भी आपको बता दिया है मैंने, यूनिसेक्सुअल. कभी कभी कुछ some plants have got unisexual flowers, यानी मेल फ्लावर अलग, फीमेल फ्लावर अलग. मेल फ्लावर जो होता है उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहते हैं, बिकॉज उसके पास खाली स्टेमेन्स है, गाइनेशियम नहीं है. एंड फीमेल फ्लावर जो होता है उसे कार्पेलेट नहीं कहते, पिस्टिलेट कहते हैं, बिकॉज पिस्टिल यानी कार्पेल. पिस्टिल ये दूसरा नाम है कार्पेल का, बट अभी हम लोग कार्पेल ज्यादा यूज करते हैं. बट इसको ये टर्म पड़ा हुआ है फीमेल पिस्टिलेट फ्लावर, यानी उसमें एंड्रोशियम बिल्कुल नहीं है, ओनली गाइनेशियम इज देयर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कैन हैव कैलिक्स एंड करोला. ओके, ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास नहीं है. तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कौन से होते हैं? कुकुरबिटा, देन कुकुरबिटा यानी कुकुम्बर, कॉक्सिनिया म्हणजे तोंडली, हे सगळे जे आहेत ना, दे आर ऑल डिफरेंट स्पीसीज ऑफ कुकुरबिटेसी फैमिली. तो ये सब कुकुरबिट्स कहते हैं उनको, ऑल कुकुम्बर्स एंड ऑल. देन मेज, पपया, these plants have got unisexual flowers. बाकी के मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, आप रोज ले लो, हिबिस्कस ले लो, जो भी फ्लावर, सनफ्लावर का भी डिस्क्लोरेट ले लो, जैस्मिन ले लो, मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स, ससाल्पिनिया ले लो, सभी फ्लावर्स बाइसेक्सुअल होते हैं. एंड बाइसेक्सुअल का दूसरा टर्म है हर्माफ्रोडाइट, यानी एंड्रोशियम गाइनेशियम बोथ आर प्रेजेंट. ओके, एग्जाम्पल हिबिस्कस, एक टिपिकल एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. अब मैं ब्रैक क्या है वो बताती हूँ आपको. जब फ्लावर जब बनता है, एक मिनट, अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगी फिर से. ये देखिए, दिस इज अ स्टेम. ओके, तो मैंने क्या कहा, या तो अपाइकल बड ऑल्सो कैन फॉर्म अ फ्लावर, और यहाँ पे एक लीफ है और इधर है एक्सिलरी बड. करेक्ट? ओके, एंड ये हो गया टर्मिनल बड. टर्मिनल हो या अपाइकल हो, एक ही. ये किसी से भी फ्लावर बन सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्लांट. तो किन किन प्लांट्स में खाली टर्मिनल फ्लावर्स होते हैं, किन किन इनमें एक्सिलरी फ्लावर्स होते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द स्पीसीज. ठीक है. अब जब एक्सिलरी बड व्हेन इट इज फॉर्मिंग अ फ्लावर, अंडरस्टैंड, ये जो लीफ होता है ना वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है. ओके, एंड देन फ्रॉम हियर a flower is formed. So this leaf which is reduced to a small scale like structure is called as a bract. So bract क्या है? It's a reduced leaf in axil of which flower is produced. Simple. ओके, जनरली ये लीफ अगर फ्लावर बन रहा है तो ये रिड्यूस होता है, उसे ब्रैक्ट कहते हैं. तो इन सम प्लांट्स द ब्रैक्ट्स रिमेन इवन आफ्टर फ्लावर फॉर्मेशन. देन वी व्हाट वी कॉल इट, अ फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, दैट इज ब्रैक्ट प्रेजेंट. दिस इज अ टाइप ऑफ फ्लावर, अंडरस्टैंड. एंड कभी कभी ये ब्रैक्ट दिखता ही नहीं है, गिर जाता है तुरंत. सो इट इज नॉट सीन, एब्सेंट. तो इसे कहते हैं इब्रैक्टिएट, दैट इज ब्रैक्ट एब्सेंट. सो ब्रैक्टिएट एंड इब्रैक्टिएट ये किस चीज के लिए यूज करते हैं? फ्लावर. फ्लावर कैन बी आइदर ब्रैक्टिएट
अगर ये ब्रैक दिखता है उसका तो ब्रैक्टिएट, एंड नहीं दिख रहा है तो ई ब्रैक्टिएट। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। ओके डन। चलो वापस स्लाइड में जाते हैं। ये सब अभी आज नहीं होगा, सिमेट्री ऑफ फ्लावर वगैरह हमको करना है इसके आगे। मैम, हाँ यस, can you show the Cyanthium special types of inflorescence slide? यस आई विल शो यू। ये ना, Yes, ma'am. हाँ इससे अच्छा Done. डायग्राम इंटरनेट पे हाँ नहीं मिला मुझे। मैम कैन यू एक्सप्लेन द फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट अगेन? यस व्हाई नॉट। एक मिनट। हाँ एक मिनट मैं समझाती हूँ। और कुछ चैट बॉक्स पे ब्रैक प्रेजेंट रहा तो लीफ बेस पे रिड्यूस, लीफ बेस पे रिड्यूस होता है नहीं, टोटल लीफ ही रिड्यूस हो जाता है। लीफ बेस इज अ पार्ट ऑफ लीफ गौरव। तो लीफ I was जब saying that at the base the leaf reduces, or overall the plant the leaves gets नो 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 reduced नो, खाली वो लीफ रिड्यूस होता है। at the base. Yes, the one which is present at the base of a flower. Okay. जिसके So- एक्सिल में फूल आया है ना, only Yes, ma'am. that leaf gets reduced and that is called bracts. बाकी के लीफ तो पूरे अच्छे से बड़े लेते हैं क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना जरूरी है। Oh, okay, ma'am. करेक्ट? Yeah, ma'am. Thank you. Yes. अभी ये देखिए मॉडिफाइड शूट कैसे है। तो शूट ये एक्चुअली ऐसे होता है और इंटरनोड्स लंबे लंबे होते हैं। तो लोएस्ट नोड जो है वो कैलिक्स बन जाता है। उसके ऊपर वाला नोड, मानो ये इवोल्यूशन में हुआ है ऐसे, ये समझो। तो उसके ऊपर वाला नोड करोला बन गया, उसके ऊपर वाला नोड एंड्रोशियम बन गया और उसके ऊपर वाला नोड गाइनेशियम। और इनके बीच बीच में जो इंटरनोड्स है ना वो इतने ये हो गए, इतने कॉम्पैक्ट हो गए कि मॉडिफाइड शूट ऐसे देखिए। अभी ये है अपना, ये अगर पेडंकल ऐसा है थोड़ा सा, मैंने सॉरी आई एम सो सॉरी, थैलामस ऐसे है। हाँ ये किससे बना है? दिस इज द बेसिस ऑफ द शूट। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे कैलिक्स ये लीव्स है वो कैलिक्स बनाए, करेक्ट। फिर उसके ऊपर के जो लीव्स है ये देखो, इंटरनोड कितना छोटा हुआ, देखो ये देखो इतना सा इंटरनोड। फिर ये बने एंड्रोशियम, बीच का इंटरनोड देखो इतना सा। फिर यहाँ पे बना गाइनेशियम, तो ये इंटरनोड्स बिकेम शॉर्ट, करेक्ट। सो दिस इज कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनेशियम। देयरफॉर वी कॉल इट मॉडिफाइड शूट। मतलब हर वॉल एक लीफ का लीव्स का मॉडिफिकेशन होके बना है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, और कुछ पूछना है आपको? No, ma'am. Can you show the PDF slide of Cymose inflorescence? Yes. एक मिनट। हाँ ये देखो, ये है रेसिमोज, ये है साइमोज, दोनों यहीं पे है। साइमोज यानी ये देखो आपको ओल्डर फ्लावर दिख रहा है और उसके नीचे छोटे फ्लावर्स, ये है साइमोज। और ये है रेसिमोज, ओल्डर फ्लावर एट द बेस, यंगर एट द टिप। ओके, तो आपको अभी कुछ और डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। तो अभी ना आपको 3 होमवर्क मैंने बताए हैं। फर्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, सभी ने करना ही है, वो कंपल्सरी। सेकंड इज यू हैव टू ड्रॉ, मैंने क्या, स्केच एंड लेबल एंड डिस्क्राइब अ टिपिकल फ्लावर। तो आपको वो सब डायग्राम बनाने, उसके वर्ड्स के
थोड़ा डिस्क्रिप्शन और फंक्शन भी देने हैं, और भी कुछ तीसरा भी मैंने बताया ना, हाँ, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस, ओनली हाइपेंथोडियम, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो उस पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है और छोटा सा डायग्राम भी चाहिए उसका। क्लियर? यस मैम। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर। Thank you, ma'am. Bye, ma'am. End the lecture. Yes. Bye everybody. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. महेश एंड कर दे लेक्चर। Okay, madam. Yes. Bye.